A very good morning, everybody. So we are back with the active passive voice part 2, basic fundamental. Okay. So this is your friend Mukesh Kumar Maurya. So let us start part 2, basic fundamentals. Okay. Before starting, we will read one wonderful quote. As you can see, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. दोस्तों future उसी से बिलोंग करता है जो अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखते हैं और अपने ड्रीम्स में बिलीव करते हैं. Okay, so believe in your dream. Okay, written by Roosevelt, first woman activist of US. Okay, so let us start without wasting time. We are starting the basic fundamental part 2. So first tense is past indefinite tense, means इसे simple past tense भी बोलते हैं. You can see सेंटेंस के जो टाइप्स है 3 टाइप्स के मैंने लिए हैं. पार्ट 1 में भी मैंने 3 टाइप्स के लिए हैं. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. दोस्तों बहुत इजी है, बहुत हल्का है एकदम, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एंड मेमोराइज करना पड़ेगा. ओके, सो यू कैन सी एक्टिव वॉइस. दिस एक्टिव वॉइस इज बेसिकली नथिंग बट द टेंस फॉर्मेशन. नथिंग बट द टेंस फॉर्मेशन. टेंस का फॉर्मेशन भी आपका ये रिवाइज करेगा. Okay, I'm telling again. Okay, so active voice, positive sentence. We are starting. Okay, let us start. So first, you can see subject plus V2 plus object plus other word. So first thing, आपको ये चीज़ पता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट हो जाता है. और एक और चीज़, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमेशा. एवरीवेयर यू विल यूज V3 इन पैसिव वॉइस, so don't forget that. Fine. So subject plus V2 plus object plus other word. So first सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट. देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वेयर. एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स दैट वॉज विल कम विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट एंड वेयर विल कम विथ प्लूरल ऑब्जेक्ट. ओके, एंड V3 plus by plus subject plus other word. In negative sentence, the same will proceed. Subject plus did plus not plus V1 plus object plus other word. And my dear friends, you have to remember this. थोड़ा सा effort तो डालना ही पड़ेगा. बिना effort डाले तो I don't think कि कुछ मिल सकता है हमें. तो a little bit effort you have to put in. Okay. Now passive voice of negative sentence. It is nothing but whatever what we have written in passive voice. Just you have to convert that sentence structure into negative only. Okay, so was where के बाद आपको क्या लगा देना है? Not लगा देना है. You can see object plus was where plus not plus V3 plus by plus subject plus other word. Fine. Okay, so let's proceed for interrogative sentence. So इसका sentence होता है did plus subject plus V1 plus object plus other word. Okay, तो हमने जो यूज़ किया है पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? वॉज और वेयर है. तो उसी से स्टार्ट करेंगे. तो वॉज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. दोस्तों एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब भी हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मीनिंग शुड नॉट बी चेंज. ऑलवेज रिमेंबर, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज. ओके, मीनिंग शुड बी सेम. फाइन. दैट इज वाई वी आर जस्ट लर्निंग दिस sentence structures and transformation. Actually these are very important. So let us see some examples by which you will understand more precisely. Okay, so here are some examples. She killed a snake. First of all you should know what is subject, what is object, what is verb. Okay, and in the previous video, in my part 1 video, I have explained you how to identify subject, verb and object. Okay, so see, subject, killed is verb and a snake is basically here object. Okay, so a snake will come at the place of subject. subject के place पे वो आ जाएगा. a snake आपको दिख रहा है सिंगुलर है. a snake बोला है तो was where में से was ही यूज होगा. ओके, a snake was killed by her. she का her होता है. अगर आप पार्ट 1 के वीडियो में देखेंगे तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि she का her, he का him, you का you, we का us, they का them. everything I have explained you in part 1 basic video. Okay. So example number 2, the students did not complete their homework. आप देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, पहला सेंटेंस पॉजिटिव था. the students did not complete their homework. तो यहाँ पे आपको their homework को काउंट करना है एज अ ऑब्जेक्ट. ओके, their homework. Okay, basically we have to count their homework was not completed by the students. was not completed by the student. Okay, fine. So now example number 3, India helped poor countries in past. India helped poor countries in past.
Okay, now what is the object here? So poor countries. So poor countries एक से ज़्यादा है, बेसिकली प्लूरल फॉर्म है, तो वेयर आएगा. पुअर कंट्रीज वेयर हेल्प्ड बाय इंडिया इन पास्ट. ओके. नंबर 4, Sachin Tendulkar opted retirement from cricket. Okay, so what is the object here? So here object is retirement. Okay, retirement from cricket. See दोस्तों, from cricket जो है बेसिकली वो एक अदर वर्ड है, वो आप बाद में भी यूज कर सकते हो, पहले भी यूज करते हो. नो ऑफेंस इन दैट यूजिंग इन द स्टार्टिंग और एट द एंडिंग. ओके. Retirement from cricket was opted by Sachin Tendulkar. Okay. Did he make a wise decision? This is the interrogative sentence. So what is here we a wise? What a wise? It is a singular. A is coming, so we can understand it is a singular. So was a wise? Then verb is here verb is decision. Was a wise decision? Was a wise decision? Make. Sorry, here verb is make. Was a wise decision made by him. This is a passive voice. ओके. तो एक बार फिर से देख लो. डिड ही मेक अ वाइज डिसीजन. तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वाइज डिसीजन जो हो जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट काउंट किया जाएगा. अ वाइज डिसीजन एज अ ऑब्जेक्ट काउंट किया जाएगा दोस्तों. तो अ वाइज डिसीजन इज अ सिंगुलर फॉर्म, तो पहले वॉज आ जाएगा. वॉज अ वाइज डिसीजन. मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है. देन बाय. डिड सॉरी ही का क्या होता है? हिम. ओके. यू हैव टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर एग्जाम्पल. ओके. तो नाउ नेक्स्ट टेंस इज पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. बहुत इजी टेंस है दोस्तों, खाली ध्यान देना, एकदम हवा में उड़ाएंगे हम लोग इसको. ठीक है. टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. नाउ एक्टिव वॉइस पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस वॉज, वेयर प्लस वी प्लस आईएनजी. वी प्लस आईएनजी इज कॉल्ड एज वी फॉर ऑल्सो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है और वॉज वेयर के बाद आपको बीइंग लगाना है. क्या लगाना है? बीइंग. BEING आप देख सकते हो. अब मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में. ओके. प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ओके. नाउ इन नेगेटिव सेंटेंस अगेन सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करो. इससे कोई ट्रिक मैनेज करना है ट्रिक मैनेज करो, बट करो ताकि आपको लर्न रखने में, मेमोराइज रखने में आपको इजी हो. नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग. तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ओके. इन इंटरोगेटिव आपको पता है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाता है, वो इनिशिएट करता है. वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. दोस्तों ये जो भी पार्ट 2 या पार्ट 1 जो भी चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडामेंटल जो रूल्स है उस पर ही चल रहा है. ठीक है. हम एग्जांपल देखेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द बेसिक फंडामेंटल, ऑल द बेसिक रूल्स, देन विल डेफिनेटली going to see the examples and will definitely hit it. Okay. So let us see some basic example relevant to the formation. He was taking a big risk. एक्टिव वॉइस है तो क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो. ही सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग V4 है. अ बिग रिस्क. अब बिग रिस्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा. इसे आगे ले आओ. अ बिग रिस्क. तो अ बिग रिस्क का मतलब एक है, तो क्या है? सिंगुलर है, तो वॉज लगा देंगे. अ बिग रिस्क वॉज. तो जो वॉज तो है, इसमें सिर्फ जो ऐड करेंगे वो बीइंग है. क्या है? बीइंग. BEING. आप अगर सेंटेंस फॉर्मेशन चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा. अ बिग रिस्क वॉज बीइंग. और टेकिंग का जो है बेसिक फॉर्म होता है टेक और थर्ड फॉर्म होता है टेकन. टेकन बाय ही का हिम. ओके. जतिन वॉज गिविंग ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफर. पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप देख सकते हैं इसको. सी वॉज टीचिंग हिम फ्रेंच. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह के सेंटेंस में हिम अगर आता है एक्टिव वॉइस में तो उसे कंसिडर करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट. हिम का होता है ही वॉज बीइंग. क्या हो जाएगा? ही वॉज बीइंग टॉट. टीच का टॉट. तो फ्रेंच आप बाद में भी लगा सकते हो. ये टॉट के बाद आप बाय हर लिख सकते हो. टॉट बाय हर फ्रेंच. दैट इज ऑल्सो ट्रू. ओके. आई टोल्ड यू with the other word you can put it in the starting or you can put it at the ending. Okay, no offense in that. Fine. Okay. she was appreciating Rita's support. Okay, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमेशा चेक करने का कि वर्ब के बाद कौन सा वर्ड है. तो रीता सपोर्ट. तो रीता सपोर्ट सिंगुलर सपोर्ट है, मतलब अकेले रीता सपोर्ट कर रही है. तो रीता सपोर्ट वॉज being appreciated by her. Okay, now negative sentence दिया हुआ है दोस्तों. He was not admitting his mistakes. तो his mistakes
बट ऑब्वियस है यहाँ पे एक से ज़्यादा मिस्टेक है तो ये प्लूरल फॉर्म में है। His mistakes were not being admitted by him। सेंटेंस फॉर्मेशन देखो ध्यान होगा दोस्तों तो चुटकियों में ये होंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन ध्यान नहीं होगा तो ऐसा लगेगा भाई जादू हो रहा है, ठीक है। विज टाइप ऑफ थिंग्स यू विल फील। दे वेर गिविंग दियर डिक्लेरेशन इन कोर्ट। ओके, दियर डिक्लेरेशन दोस्तों, क्या वर्ब के बाद देखो दियर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। अब बोले इन कोर्ट भी आपको साथ में यूज करना है तो कर लो भैया, कोई तकलीफ नहीं है, और लास्ट में भी यूज कर सकते हो, कोई मैटर है नहीं। दियर डिक्लेरेशन अब एक से ज्यादा होगा। वेयर बीइंग गिवन बाय देम इन कोर्ट। दे का क्या हो गया, देम हो गया। इन कोर्ट ये अदर वर्ड है ही, मैंने पहले ही बोला है, आप इसे आगे यूज करो पीछे यूज करो, कोई प्रॉब्लम है नहीं दोस्तों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टेंस देखेंगे हम, एंड दैट इज पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। वंडरफुल टेंस, वेरी नाइस, वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइप ऑफ सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो बेसिक चेंजेस जो होते हैं वो तो होंगे ही, बस यहाँ पे हैड के साथ को बीन लगा देना है और सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट कर देना है। बाय के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता ही है तो पैसिव वॉइस में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी हमें। नेगेटिव सेंटेंस पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड देन ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इससे रिलेटेड हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ताकि और क्लियर हो सके। He had willingly donated woolen clothes, एक्टिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, willingly donated। यहाँ पे जो डोनेटेड है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वर्ब। वुलन क्लोथ, तो वुलन क्लोथ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा स्टार्टिंग में। वुलन क्लोथ हैड बीन, दोस्तों मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बताया है कि हैड के साथ बीन लगता है, फाइन, हैड के साथ बीन लगता है, फाइन। तो woolen clothes had been donated by him willingly, passive voice। My father had established good tradition in my family। तो good tradition always, दोस्तों जब आप हैबिचुएटेड हो जाओगे ना, जब आपको सारे फॉर्म लर्न हो जाएंगे और थोड़े एग्जांपल्स कर लोगे तो ये जिस तरह मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ ऑब्जेक्ट, आप मुझसे भी जल्दी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। माई फादर, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्टैब्लिश्ड हो गया V3 एंड गुड ट्रेडिशन इन माई फैमिली, आप इसको शुरुआत में भी लिख सकते हो और गुड ट्रेडिशन को भी पहले लिख सकते हो, मैंने गुड ट्रेडिशन लिखा है। उसके बाद हैड प्लस बीन, गुड ट्रेडिशन हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय माय फादर इन माय फैमिली। ओके, अंडरस्टूड, होप यू आर गेटिंग। माय फादर हैड एस्टैब्लिश्ड गुड ट्रेडिशन इन माय फैमिली, दिस इज डन, 2 times I have written this and you can see माय फादर हैड एस्टैब्लिश्ड गुड ट्रेडिशन इन माय फैमिली। तो देखो आगे दोस्तों क्या लिखा है, थोड़ा सा चेंजेस करके, इन माय फैमिली, क्या लिखा है, इन माय फैमिली गुड ट्रेडिशंस हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय माय फादर, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला दोस्तों, अदर वर्ड्स के साथ आप जो भी करना हो कर सकते हो, आगे पीछे उसे लिख सकते हो, बट द ओरिजिनल फैक्ट इज दैट मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। ओके, फाइन। नंबर 4, द चेयरमैन्स एंट्री हैड कंप्लीटली चेंज्ड द एनवायरनमेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द चेयरमैन्स एंट्री हैड, तो द चेयरमैन्स एंट्री हैड कंप्लीटली चेंज्ड। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं जो अननेसेसरी भी हैं तो उसे समझना पड़ेगा हमें। ओके, द चेयरमैन्स एंट्री को पूरा हम सब्जेक्ट ही काउंट करेंगे, हैड कंप्लीटली चेंज्ड को हम पूरा वर्ब काउंट करेंगे, द एनवायरनमेंट को हम ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे। द एनवायरनमेंट हैड बीन, हैड के साथ बीन लगे, कंप्लीटली चेंज्ड एज इट इज बिकॉज V3 आता है, V3 हैड के एक्टिव वॉइस में भी आता है। बाय द चेयरमैन्स एंट्री, डन। हैड ही स्पोकन द ट्रूथ, तो क्या द ट्रूथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैड द ट्रूथ बीन स्पोकन बाय हिम। ओके, जब भी मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको ना पता चले तो आप जरूर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जाइए, आपको पता चलेगा, बिकॉज सेंटेंस स्ट्रक्चर इज मस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, तो इसी के साथ मैं बेसिक rules of past tense I'm completing over here. Okay, next time we will see future tense, some basic rules of future tense, okay, and some example also. Till then, stay at your home and follow all the precautions to avoid
COVID-19. And Jai Hind, Jai Bharat.